بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا MCM 304 کا کوئز نمبر 1 کریں گے. آج کے کوئز میں ہم لوگ 10 لیکچرز کور کریں گے. آج کے جو آپ لوگوں کے یہ جو کوئز ہے اسی میں سے آپ لوگوں کے مڈ ٹرم کے MCQs بھی آئیں گے اور آپ کی جو کوئزز ہونے ہیں اس میں بھی یہ سارے MCQs انشاءاللہ ضرور ریپیٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور تھرو آؤٹ دا لائف آگے جو اسٹوڈنٹس اس ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے کوئی 2 سیمسٹر بعد بھی دیکھتے ہیں, 4 سیمسٹر بعد بھی دیکھتے ہیں, تو بھی اسٹل ان کے لیے یہی ویڈیو چلے گی. اسی میں سے ہی آپ کے مڈ ٹرم MCQs بھی آئیں گے کچھ, اور آپ لوگوں کے کوئز بھی آئیں گے اسی ویڈیو میں سے. ٹھیک ہے. اور چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف. سب سے پہلا ہمارا MCQs ہے. اچھا, اس سبجیکٹ کے جو لیکچرز ہیں نا وہ آپ کے اپلوڈڈ ہیں, شارٹ لیکچرز ہیں وہ, اور ہر چیز اس میں آپ کو میں نے ایکسپلین کر کے بتائی ہے. اس میں نے خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے کہاں سے MCQs آئے گا, کہاں سے شارٹ کوسچن آئے گا, کہاں سے لانگ کوسچن آئے گا. تو وہ جو ویڈیو ہے, جو لیکچرز ہیں وہ آپ لوگ لازمی لیجیے گا, اس سے آپ کے بہت اچھے مڈ ٹرم کور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. آگے ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کیجیے گا. چینل کے ہوم پیج پہ جا کے پلے لسٹ کے آپشن میں جائیں اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو اس کی پلے لسٹ پوری کی پوری مل جائے گی. سارے کے سارے اس کے لیکچرز اپلوڈڈ ہیں. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی طرف. سب سے پہلا ہمارا MCQ ہے دا کمیشن رپورٹ میڈ ٹو انویسٹیگیٹ دا ریزنس فار کمیونل ریورٹس بلیمڈ ڈیش فار پرووکنگ دا ایموشنز آف پیپل فار ریورٹس. جو دنگے فساد ہو رہے تھے خاص طور پہ جو فرقہ واریت کی بنیاد پہ, وہ دنگے فساد پیچھے کیا ریزن ہے, اس ریزن کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا تھا. اور کمیشن کی نے جو اپنی جو رپورٹ دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جو نیوز پیپرز ہیں وہ لوگوں کے ایموشنز کو پرووک کر رہے ہیں ریورٹس کے لیے. تو نیوز پیپرز یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. دے بلیمڈ نیوز پیپرز فار پرووکنگ دا ایموشنز آف پیپل فار ریورٹس. Which of the following is the result of an immediate problem? Mob is the result of an immediate problem. اس میں 3 طرح کے آپ لوگوں کے MCQs آتے ہیں. میں آپ کو تینوں ایکسپلین کر دیتی ہوں. موب وہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل کہیں پہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے یا کہیں پہ کوئی مسئلہ ہے تو لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے, اور جب وہ مسئلہ وہاں پہ نہیں ہوتا, مسئلہ ختم ہو جاتا ہے, تو لوگوں کا ہجوم چھٹ جاتا ہے. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں موب, جو کہ فوراً سے بغیر کسی پلاننگ کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, اور ان لوگوں کا آپس میں کوئی لنک بھی نہیں ہوتا, ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہوتے, اور کسی مقصد کے لیے بھی نہیں اکٹھے وہ ہوتے, جسٹ وہ ایک تماشائی کی طرح وہ ایک کرتے ہیں, تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں موب. ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے میس. میس کا مطلب کیا ہوتا ہے, سیم جو انٹرسٹ کی بنیاد پہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, جن کے لائکس اینڈ ڈس لائکس سیم ہوتے, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں میس. فار ایگزامپل اب کچھ اسٹوڈنٹس ہارلم اسٹڈی انسائٹس کے چینل کو جو پسند کرتے ہیں ویڈیو کے, اب وہ اسٹوڈنٹس کوئی آپس میں انہوں نے مشورہ نہیں کیا کہ ہم نے ہارلم اسٹڈی انسائٹس کے لیکچرز کو دیکھنا ہے. اب بائی چانس جتنے بھی لوگ ہارلم اسٹڈی انسائٹس چینل کو پسند کرتے ہیں وہ سارے کیا آئیں گے, وہ ایک میس ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پبلک کیا ہوتا ہے. پبلک ہوتا ہے کہ ایک ایفرٹ کے تھرو جو کریٹ کی جاتی ہے. فار ایگزامپل میں لیکچرز اپلوڈ کرتی ہوں, ریکارڈ کرتی ہوں ان کو, پھر میں اپلوڈ, میں ایک ایفرٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے. میں نے آپ لوگ کے لیے لیکچرز اپلوڈ کی, میں نے ایک ایفرٹ کی. اس ایفرٹ کے نتیجے میں میری جو ایک آڈینس اکٹھی ہوگی, جو میرے سبسکرائبرز ہیں, وہ میری پبلک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 3 چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں. The entry of Dash affected the readership of the newspapers. Entry of television. ٹیلیویژن جب آیا تھا تو پھر نیوز پیپر پڑھنا بہت زیادہ کم ہو چکے, کیونکہ ٹیلی ویژن پہ ساری خبریں ہوتی ہیں. Western countries were doubtful on the role of Dash regarding اسلامک کانفرنس. جو اسلامک کانفرنس تھی اس کے متعلق جو ویسٹرن کنٹریز تھی وہ یہ کہتی تھی کہ پاکستان کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے, تو وہ پاکستان میں ان کو شک تھا, تو پاکستان یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. Where was the Police Act imposed in 19th century? پولیس ایکٹ انڈیا میں لگایا گیا تھا 19th century میں. جو کوئین ایلزابتھ تھی برٹش کی, انہوں نے انڈیا پہ پولیس ایکٹ لگایا تھا 19th century میں. ڈان نیوز پیپر واز اسٹارٹیڈ اٹس پبلیکیشن فرام وچ سٹی. دلی سے جو ہے وہ دہلی سے ڈان نیوز پیپر نے اپنی پبلیکیشن اسٹارٹ کی تھی. ڈیش ریپلیس دا ٹچ آف پولیٹیکل نیوز ان جنرل ایوب ریگائم. جنرل ایوب خان کا جو ایک ایرا تھا اس میں جنرل ایوب نے پابندی لگا دی تھی کہ آپ سیاسی خبریں شائع نہیں کر سکتے, تو اس لیے سیاسی خبروں کی وجہ سے جو ایک گیپ کریٹ ہو گیا تھا, اس گیپ کو کور کرنے کے لیے جتنے بھی نیوز ایڈیٹرز وغیرہ ہوتے تھے, وہ جو گورنمنٹ منسٹرز ہوتے تھے, ان کی آفیشیل سٹیٹمنٹس کو وہ
लिख दिया करते थे कि फलां गवर्नमेंट मिनिस्टर ने ये कहा, फलां जो है ना वो वजीर ने ये कहा। तो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, ये इसका राइट आंसर है। The right to refuse a declaration was given to the deputy commissioner. Which of the following options? डिक्लेरेशन को रिफ्यूज करने का जो एक हक दे दिया गया था डिप्टी कमिश्नर को, वो किसने दिया था? वो अयूब खान ने दिया था। तो अयूब खान एरा इज द राइट आंसर। Which one of the following organizations was established by the government to take over those newspapers that were suffering from financial crisis? एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी गवर्नमेंट ने, और वो इसलिए बनाई थी कि जो भी न्यूज़पेपर्स हैं जिनको माली तौर पे मुश्किलात का सामना है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन उन तमाम न्यूज़पेपर्स को अपने अंडर रख लेगी। तो वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी उसको नेशनल प्रेस ट्रस्ट बोला जाता है। तो नेशनल प्रेस ट्रस्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर है। What is the meaning of mob? Mob लोगों का ऐसा ग्रुप होता है that gathered quickly on a problem, जो किसी मसले पे एक दम से इकट्ठे हो जाते हैं, and have no link with each other, उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। ये वाला इसका राइट आंसर है। In which country book printing was started in 15th and 16th century? 15वीं और 16वीं सदी में बुक प्रिंटिंग का आगाज यूरोप से हुआ था। तो यूरोप इसका राइट आंसर है। When did Delhi fall occur? Delhi fall in 1857, जो दूसरी जंग अजीम थी 1857 की, उसमें हुआ था। तो 1857 इसका राइट आंसर है। नींद बहुत आ रही है मुझे। In 1953, communal riots were started between Muslims and Ahmadis. 1953 में जो एक फिरका वारियत और जो दंगे फसाद स्टार्ट हुए थे वो मुसलमानों के दरमियान और अहमदियों के दरमियान स्टार्ट हुए थे। तो अहमदीज इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म पब्लिक? पब्लिक वो होता है लोगों का वो ग्रुप जो किसी एफर्ट के बाद बनता है। अ ग्रुप ऑफ द पीपल दैट इमर्ज्ड आफ्टर एन एफर्ट। ये मैं जो कंसेप्ट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जो द फॉलोइंग रेडियो स्टेशन वाज बिल्ड इन 1927, 1927 में जो रेडियो स्टेशन बिल्ट अप किया गया था वो पेशावर रेडियो स्टेशन था। तो पेशावर इसका राइट आंसर है। गवर्नमेंट डज नॉट गिव एडवर्टाइजमेंट्स टू डैश न्यूज़पेपर्स। गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट न्यूज़पेपर्स को अपने इश्तेहारात वगैरह नहीं देते, क्योंकि इश्तहार वगैरह से न्यूज़पेपर्स को फ़ायदा होता है। एंटी गवर्नमेंट वो न्यूज़पेपर होते हैं जो कि गवर्नमेंट के ही खिलाफ होते हैं। तो गवर्नमेंट अपने खिलाफ न्यूज़पेपर्स को क्यों एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देगी? तो एंटी गवर्नमेंट न्यूज़पेपर इसका राइट आंसर है। ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइन इन जनवरी 1966। ठीक है, 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया गया था। Which of the following had played role in the elections? आज़ाद जो था, आज़ाद न्यूज़पेपर, इसने बिल्कुल सही रोल प्ले किया था इलेक्शंस में। बाकी जितने भी न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने सही पिक्चर नहीं दिखाई थी। According to the Press Act, the declaration was submitted to whom? प्रेस एक्ट के मुताबिक डिक्लेरेशन किसको सबमिट करवानी होती थी? डिप्टी कमिश्नर को सबमिट करवानी होती थी। तो डिप्टी कमिश्नर इसका राइट आंसर है। इन द इनर पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ 1979 में अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हालात थे उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक वाज ट्राइंग टू डैश द कंट्री। जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान को इस्लामी बनाना चाहते थे, इस्लामाइज द कंट्री। ये वाला इसका राइट आंसर है। Who had been for third martial law in the history of Pakistan? तीसरा मार्शल लॉ पाकिस्तान की हिस्ट्री में जनरल ज़ियाउल हक ने लगाया था। ठीक है, तो जनरल ज़ियाउल हक इसका बिल्कुल राइट आंसर है। Which of the following events happened in the era of 1979? 1979 में अफगान क्राइसिस भी हुए थे और ईरान रिवोल्यूशन भी हुई थी। तो ये दोनों ही इसका राइट आंसर है। तो बोथ ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज द राइट आंसर। हु डिक्लेयर्ड दैट पाकिस्तान वुड आल्सो एक्वायर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी? किसने ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उसको हासिल करेगा? तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था। लेकिन पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर पावर हासिल की थी वो नवाज शरीफ के पीरियड में की थी। ठीक है, ऐलान पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था। उसके बाद आगे है इन विच सेंचुरी हैंडमेड प्रेस वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश? हैंडमेड प्रेस सबसे पहले एस्टैब्लिश किया गया था 10वीं सदी में, 10th सेंचुरी इसका राइट आंसर है। which were focused in the content of newspaper since 1857 in Indo-Pak. इंडिया और पाकिस्तान में 1857 तक ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स में किस चीज़ पे फोकस रखा जाता था? पॉलिटिक्स पे फोकस रखा जाता था, सियासत पे फोकस रखा जाता था। तो पॉलिटिक्स इसका राइट आंसर है।
Which language was the only source of communication between the two wings of Pakistan before 1971? 1971 से पहले जब अभी बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग नहीं हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों जो विंग थे इनके दरमियान सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश ही थी, क्योंकि वो बंगाली ज़बान बोलते थे तो यहाँ के लोग बंगाली को अंडरस्टैंड नहीं करते थे, यहाँ के उर्दू बोलते थे तो बंगाली जो थे वो उर्दू को सही से अंडरस्टैंड नहीं करते थे। सिर्फ इंग्लिश ही थी जो कि दोनों एक दूसरे की बात तो समझा सकते थे एक दूसरे को, लेकिन लोग क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो इंग्लिश भी वो यूज़ नहीं कर सकते थे। आगे हम लोग चलते हैं। इन सब कॉन्टिनेंट ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड पब्लिशिंग इट्स पेपर्स इन विच लैंग्वेज? ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि बिल्कुल अंग्रेज़ों की थी, ब्रिटिश की थी, तो उन्होंने अपने जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे उन्होंने इंग्लिश में ही स्टार्ट किए थे, तो इंग्लिश इसका राइट आंसर है। अफगान वॉर इनकरेज्ड डैश इन पाकिस्तान। अफगान वार की वजह से पाकिस्तान के अंदर एक तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म आई थी, दूसरा सेक्टेरियन वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म यहाँ पे मेंशन्ड है, तो ये वाला इसका राइट आंसर है। हाउ मेनी पार्टीज स्टार्टेड देयर इलेक्शन कैंपेन्स आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस बाय याहिया खान? याहिया खान ने जब अनाउंसमेंट कर दी थी इलेक्शंस की तो उसके बाद पूरी 63 पार्टीज थी जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन का आगाज किया था, तो 63 इसका राइट आंसर है। मुक्ति बाहिनी वाज आल्सो नोन एज लिबरेशन फ्रंट। ये जो बंगाल के जो लोग थे जब उन्होंने एक तहरीक चलाई थी कि हमने पाकिस्तान से अपना हट के एक अलग अपना मुल्क बना लेना है, तो उसको हम लोग लिबरेशन फ्रंट या मुक्ति बाहिनी बोलते हैं, और इसको इंडिया ने बहुत ज़्यादा बंगालियों की हमायत की थी। कम्युनिकेशन हिंडेड बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर। ज़बान एक तो डिफरेंस था, इसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाती थी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में, तो लैंग्वेज बैरियर इसका राइट आंसर है। विच न्यूज़पेपर प्रेजेंटेड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन 1969-1970 इलेक्शंस? इन इलेक्शंस में मसावात ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्रेजेंट किया था, तो मसावात इन्हीं की थी, पाकिस्तान पीपल पार्टी की थी, तो इसका राइट आंसर है। अब्दुल्ला मलिक, फैज अहमद फैज एंड चिराग हसन हसरत वर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स? इमरोज़। ये तीनों जो हस्तियां थी अब्दुल्ला मलिक, फैज अहमद फैज और चिराग हसन हसरत, ये इमरोज़ के साथ काम करते थे, तो इमरोज़ इसका राइट आंसर है। In 1937 Progressive Papers Limited started Pakistan Times in which city? 1937 में प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड ने पाकिस्तान टाइम्स को, ये टाइम्स जो है ना वो न्यूज़पेपर का नाम है, ये लाहौर से शुरू किया था, सॉरी, तो लाहौर जो है ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स वर स्टार्टेड बाय जमात इस्लामी? जमात इस्लामी जो थे उन्होंने कोहिस्तान जो न्यूज़पेपर है वो स्टार्ट किया था, ठीक है, तो कोहिस्तान यहाँ पे इसका राइट आंसर है। The changes in international political arena directly affected Pakistan in which of the following year? पूरी इंटरनेशनली अगर देखा जाए पूरी दुनिया में जो सियासी माहौल तब्दील हुआ था उससे पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था 1979 में, ठीक है, तो 1979 इसका राइट आंसर है। Which of the following country was supported मुक्ति बाहिनी? मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट इंडिया ने किया था क्योंकि वो हमायत करते थे बंगालियों की कि पाकिस्तान से अलग हो जाएं। Most of the newspapers that were in Delhi prior to independence were shifted to? आज़ादी से पहले जो ज़्यादातर न्यूज़पेपर जो कि दिल्ली में थे जब इंडिपेंडेंस हो गई, जब आज़ादी मिल गई तो उसके बाद उनको कराची में शिफ्ट कर दिया गया था, तो वो कराची शिफ्ट हो गए, तो कराची इसका राइट आंसर है। पाकिस्तान इज अ डैश, पाकिस्तान एक वफाक है, पाकिस्तान इज अ फेडरेशन, ठीक है, तो फेडरेशन इसका राइट आंसर है। इन जनरल अयूब्स एरा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग गेट्स अ न्यू डायमेंशन? फीचर राइटिंग। फीचर राइटिंग बिल्कुल चेंज हो गई थी, उसे एक नया पहलू दिया गया था जनरल अयूब खान के दौर में। विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू इंट्रोड्यूस न्यू ट्रेंड्स ऑफ वीमेन स्टोरीज इन द न्यूज़पेपर? इमरोज़ था, क्योंकि जब अयूब खान ने पाबंदियां लगा दी थी कि भाई पॉलिटिकली कोई बात नहीं करेगा कोई भी न्यूज़पेपर में, तो उस वक्त फिर जितने भी न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने फिर क्या किया कि दूसरी चीज़ों के बारे में लिखना शुरू कर दिया, इंटरटेनमेंट के बारे में लिखना शुरू कर दिया, ख़वातीन के बारे में लिखना शुरू कर दिया। इमरोज़ वो न्यूज़पेपर है जिसने सबसे पहले औरतों की स्टोरीज न्यूज़पेपर्स में छापना शुरू की थी, औरतों के मामलात, औरतों के मसाइल, ये सारे जो है ना उन्होंने छापना शुरू किए थे, तो इमरोज़ जो है ये इसका राइट आंसर है। ये थे आप लोगों के टोटली सारे MCQs। इंशाल्लाह इसमें से आप लोगों के काफ़ी सारे MCQs रिपीट होंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को आगे शेयर लाजमी कीजिएगा, और जिस स्टडी ग्रुप में हैं वहाँ पे आप लोग लाजमी जो भी मेरे लेक्चर्स हैं उनको आप लोग रिकमेंड कीजिएगा, ठीक है। बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाएं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।